ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ شوہر نے شادی کی پہلی رات مجھے حق مہر میں ایک انگوٹھی دی جو بہت قیمتی تھی۔ بدلے میں مجھ سے بولا مجھے بھی حق مہر دو۔ میرے پاس کچھ نہیں تھا، یوں میں نے اسے پیسے دینے چاہے، پر وہ بولا مجھے حق مہر میں کچھ اور چیز چاہیے، اور اگر تم مجھے وہ چیز نہیں دے سکی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ سنتے میں گھبرا گئی اور حامی بھر دی، لیکن شوہر نے جو چیز مانگی میرا دل بند ہونے لگا، کیونکہ وہ تو مجھ سے ندیا کا تعلق ایک خوشحال گھرانے سے تھا۔ بچپن سے ہی اس نے کبھی غربت کا منہ نہ دیکھا تھا۔ وہ لوگ 3 بہنیں ہی تھیں اور بھائی کوئی نہ تھا۔ بہنیں سب بڑی تھیں اور ندیا سب سے چھوٹی ہونے کے سبب ننیال اور ددیال دونوں خاندانوں کی لاڈلی تھی، کیونکہ دونوں خاندانوں میں وہ سب سے چھوٹی تھی، جس کی وجہ سے سب اسے بہت پیار کرتے اور اس کے بچوں کی طرح لاڈ پیار اٹھاتے۔ پہل وہ لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے۔ چچا کی فیملی بھی ان کے ساتھ رہتی تھی۔ چچا کے 2 ہی بچے تھے، ایک بڑی بیٹی اور ایک اس سے چھوٹا بیٹا جازب، جو ندیا سے 2 سال بڑا تھا اور اپنی بہن سے 3 سال چھوٹا۔ دادی نے ندیا اور جازب کا رشتہ بچپن سے ہی طے کر دیا تھا۔ اس بات کو سب نے خوشی سے قبول کر لیا تھا، کیونکہ چچی بھی اس سے پیار کرتی تھی اور گود میں بٹھائے رکھتی تھی، کھلاتی پلاتی تھی، اس کے بالوں میں برش کرتی تھی، اس کو نہلاتی دہلاتی اور اس کے لیے خوبصورت فراک اپنے ہاتھوں سے سی کر پہناتی تھی، جس سے دادی بہت خوش ہوتی کہ میری ندیا کی ساس اچھی رہے گی، بالکل ماں جیسی۔ جازب کو سب گھر والے پیار سے جازی اور ندیا کو ندو کہتے تھے۔ ان کے رشتے کی چھوٹی سی تقریب گھر میں رکھی گئی جب ندیا 5 سال کی تھی اور جازب 7 سال کا تھا۔ دادی کو اپنی زندگی میں ہی اپنے لاڈلے پوتے پوتی کی خوشیاں دیکھنے کا بہت شوق تھا، کیونکہ جازب ان کے دونوں بیٹوں میں اکلوتا پوتا تھا اور بہت منتوں اور مرادوں سے دادی کے پوتے کی خواہش پوری ہوئی تھی، مگر انہوں نے اپنی بڑی بہو ندیا کی ماں کو کبھی بیٹے کا تانا نہ دیتی تھی۔ اس گھر میں کوئی بھی بیٹی پر برا نہیں مناتے تھے، بلکہ بیٹی ہونے پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور پورے خاندان میں مٹھائی بانٹتے تھے اور ہاسپٹل میں بھی مٹھائی تقسیم کرتے تھے۔ ندیا کے دادا کہتے کہ شاید اللہ پاک ان بیٹیوں کے نصیب سے ہی اتنا کچھ دے رہا ہے۔ ان کی پیدائش پر خوشی منانا اور ان کی اچھی طرح تربیت کرنا بھی ہمارے لیے دوزخ سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے ان کی پیدائش پر ناخوش ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ پاک کی رحمتوں کی ناشکری۔ ندیا کی ماں کو اپنے بیٹے کا بہت شوق تھا۔ وہ کبھی شوہر سے اپنی اس خواہش کا اظہار کرتی تو وہ اسے سمجھاتا کہ بیگم دمادوں کی صورت میں تمہیں 4 بیٹے مل جائیں گے، دیکھ لینا وہ بیٹیوں سے کم نہ ہوں گے۔ ندیا کی ماں کبھی ساس کے پاس آ کر بھی یہی بیٹے کی خواہش کا اظہار کرتی تو وہ بھی اسے سمجھاتی کہ اللہ پاک پر بھروسہ رکھو، اگر اس نے تمہیں بیٹا نہیں دیا تو اس میں بھی اس کی کوئی مصلحت ہوگی۔ ندیا کی نانی اپنی بیٹی کو سمجھاتی کہ شکر کرو جو تیرا شوہر اور ساس سسر بہت اچھے ہیں، جو بیٹا نہ ہونے پر تمہیں قصوروار نہیں ٹھہراتے، ورنہ تو سسرال والے یا تو بہو کو اس جرم میں طلاق تک دلوا دیتے ہیں، اور اپنے فائدے کے لیے اسے چھوڑنا نہ بھی چاہیں تو پھر اسے تانے دے دے کر زندہ لاش بنا دیتے ہیں۔ جب بھی بیٹی کی پیدائش پر تمہارے سسرال والے خاندان والوں کو مٹھائی بھیجتے ہیں تو وہ رشک سے کہتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کی بیٹے پیدا کر کے بھی سسرال میں اتنی قدر و منزلت نہیں جتنی تمہاری بیٹی کی بیٹیاں پیدا کر کے ہے۔ کچھ مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ وہ بیٹا نہ ہونے پر احساس کمتری میں شرمندگی سے زیادہ دھوم دھام مچاتے ہیں تاکہ ان کی احساس محرومی چھپ سکے، ورنہ بیٹے کسے برے لگتے ہیں۔ جب ندیا کے چچا کے ہاں بھی پہلی بیٹی ہوئی تو سب سے زیادہ ندیا کی ماں دکھی تھی۔ وہ کہتی چلو مجھے نہ صحیح میرے دیور کے یہاں ہی بیٹا ہو جائے، کم سے کم اس خاندان کا نام تو چلے، اتنی ڈھیروں جائیداد کا کوئی تو وارث ہو۔ ندیا کی دادی کہتی بہو ایسے مت کہا کرو، شکر کرو کہ اللہ پاک نے اولاد سے تو نوازا ہے، چاہے بیٹی کی صورت میں ہی صحیح۔ وہ لوگ بھی ہیں جو بیٹی کے لیے بھی ترستے ہیں۔ ندیا کی ماں صفائی پیش کرتے ہوئے بولی نہیں ماں جی، میں تو صرف اس لیے کہہ رہی تھی کہ یہ ساری دولت جائیداد دمادوں کے پاس چلی جائے گی، لوگوں کو فائدہ ملے گا۔ ساس نے بہو سے کہا دیکھو بہو رانی، اپنی سوچ کو درست کرو، سب کے لیے اچھا سوچو۔ اگر ہم کسی سے رشتہ قائم کرتے ہیں تو وہ بھی ہماری زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل ہو جاتے ہیں۔ اگر بیٹے کی شادی کرتے ہیں تو وہ بھی ہماری بیٹی سے زیادہ اس گھر کی مالکن اور ہر چیز کی وارث ہو جاتی ہے۔ اگر بیٹی کو آدھا حصہ ملتا ہے تو بیٹے کو پورا حصہ ملتا ہے۔ اس پورے حصے میں
बहू भी शौहर के हिस्से की पूरी मालकन बन जाती है और उसे हक दावे से इस्तेमाल करती है। इसी तरह अगर बेटी की जिससे शादी होती है तो वो भी अपने हिस्से की अकेली वारिस नहीं होती, उसका शौहर और उसके बच्चे भी वारिस होते हैं। तो क्या शौहर का अपनी बीवी की जायदाद पर हक नहीं रखता? और इस जायदाद से अगर बेटी के ससुराल वालों को भी फायदा मिल रहा है तो इसके ससुराल वालों से इसका हमेशा का रिश्ता कायम हो जाता है। तो उसके असल माँ बाप न सही लेकिन वालदैन तो बन ही जाते हैं। तो क्या वालदैन अपनी बेटी हो या बेटा उसकी चीज पर हक नहीं रखते? इसलिए ये सोचना कि हमारे बेटे होंगे तो जायदाद घर में ही रहेगी, तो एक पराई लड़की भी तो आकर इसकी मालकन बन जाएगी ना। इसलिए बेटे को इसका हक लाजमी देना चाहिए। अगर पराए लोग फायदा उठाएंगे तो बेटी भी तो उठाएगी। बहू शर्मिंदा होकर बोली, आप दुनिया की वह अजीम सास हैं जो इतनी अच्छी सोच रखती हैं, और मैं भी खुश नसीब हूँ जिसको आप जैसी सास मिली। निधिया की दादी बोली, इस बात का सेहरा तुम्हारे ससुर साहब को जाता है, वरना मेरी सोच भी रवायती ही थी। मगर मेरे शौहर ने जब मुझे समझाना शुरू किया तो मेरी सोच बदलती चली गई, और मैं तुम्हारी 3 बेटियां होने के बावजूद कभी शिकवा जुबान पर न लाई और ना ही कभी ताने दिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि देने वाली तो ऊपर की जात है। चाहे बेटा दे, चाहे बेटी, चाहे औलाद से नवाजे या चाहे बे औलाद रखे, मुझे समझ नहीं आती कि फिर औरत को बेटा ना पैदा करने पर ताने तशने क्यों दिए जाते हैं, जबकि वो तो खुद बेबस होती है। जब निधिया की चची ब्याह कराई तो निधिया की माँ ने उसे अपनी छोटी बहनों की तरह समझा और उसका बहुत ख्याल रखती। इसको नई दुल्हन होने के नाते कोई काम न करने देती। फिर जब उसकी पहली बेटी होने वाली थी तो उसका बहुत ख्याल रखती, बच्ची का भी अपनी औलाद की तरह ख्याल रखती। चच्ची अपने मैके जाकर माँ को बताती कि अगर उसकी सगी बहन भी उसकी जेठानी होती तो वो उससे इतना प्यार न करती, उसका इतना ख्याल न रखती जितना मेरी जेठानी मेरी एक बड़ी बहन की तरह रखती है। सब इस घराने की इत्तफाकी की मिसालें देते थे। निधिया की माँ कहती कि मेरी माँ ने मुझे हमेशा ये नसीहत की कि जिन लोगों के साथ तुम्हारा हमेशा का साथ है उनके साथ हमेशा सलूक व इत्तफाक से अगर बना कर रखोगे तो बहुत सी मुसीबतों और परेशानियों से बचे रहोगे। इसकी वजह यह है कि बाहर के लोगों का कुछ भरोसा नहीं होता कि वो हमें सही नसीहत लगा रहे हैं या नहीं। कुछ लोग तो दोस्तनुमा दुश्मन भी होते हैं। इनका काम होता है दूसरों के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करके फसाद डलवाना और उनके दिलों को एक दूसरे से मुतनफ़िर करना और फिर तमाशा देखना। सारे ऐसे नहीं हो सकते। कुछ लोग होते तो हमारे दोस्त ही हैं, मगर वो अपनी नाक़िस अक्ल की बिना पर बेवकूफ़ाना मशवरे देकर फसाद डलवा देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक औरत का शौहर शक्की मिजाज है, ये शक्की मिजाज नहीं भी है तो वहमी है कि उसकी अपनी बीवी पर तो भरोसा होता है मगर दूसरों पर नहीं। इस वजह से वो अपनी बीवी को किसी के साथ भी या अकेले बाहर आने जाने की इजाज़त नहीं देता। अब दूसरी औरत है, उसका शौहर ऐसा नहीं सोचता, वो अपनी बीवी को आज़ादाना कहीं भी आने जाने की पूरी आज़ादी देता है। अब वो दोनों दोस्त हैं, शादी से पहले इकट्ठी आती जाती, शॉपिंग पर अकेली जाती थी। उनके वालिदैन की तरफ से उनको कोई रोक टोक नहीं थी। दोनों की शादी हो जाती है। एक दोस्त ने शॉपिंग पर जाना है और उसे शौहर की तरफ से मुकम्मल आज़ादी है। वो दूसरी दोस्त को फ़ोन करके कहती है कि फ़लाँ दिन या फ़लाँ वक्त पर तैयार रहना, हम दोनों शॉपिंग पर जाएंगे। और दूसरी का अगर शौहर इजाज़त देना भी चाहता है तो शायद इसके वालिद माँ या बाप ऐसा नहीं चाहते होंगे कि उनकी बहू आज़ादाना अपने दोस्तों के साथ अकेली घूमती फिरती रहे। अब बीवी उसे मजबूर करती है कि मेरी दोस्त फ़लाँ दिन आएगी, मैंने उसके साथ जाना है। कुछ औरतों के शौहर भी अपने वालिदैन के सामने अपनी बीवी पर अपनी मर्जी लागू नहीं कर सकते। वो अगर बीवी के जोर देने पर वालिदैन से डरते झिझकते इजाज़त लेने भी जाते हैं तो अगर वो साफ मना कर देते हैं तो फिर मियाँ बीवी में एक दोस्त की वजह से झगड़ा शुरू हो जाता है कि बीवी अपनी किस्मत को कोसते हुए कहती है कि मैं इधर एक कैदी की सी जिंदगी बसर कर रही हूँ, मेरी दोस्त कितनी सुखी है, इस पर कोई पाबंदी नहीं। उसका शौहर तुम्हारी तरह बुज़दिल और डरपोक नहीं जो वालिदैन के सामने बीवी पर अपनी मर्जी नहीं चला सकता। गर्ज किसी की देखा देखी औरत दूसरी औरत से मुकाबला करके अपने घर का माहौल ख़राब कर देती है, खुद भी बेसकून रहती है और शौहर को भी बेसकून कर देती है। हत्ता कि अपने मैके जाकर भी ससुराल की पाबंदियों को जुल्म बनाकर पेश करके अच्छे खासे ख़ानदानी घराने से तलाक लेकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेती हैं। अगर शौहर तुम पर पाबंदी लगाता है तो वो तुम्हारी हिफाजत करना चाहता है। औरत की चलती ट्रेन में इज्जत लुट गई, चलती बस में 3 मर्दों ने एक लड़की की इज्जत लूट ली
और बूढ़ी औरत की टैक्सी ड्राइवर ने इज्जत लूट ली। गर्ज बाहर इंसान नुमा भेड़िए रहते हैं आजकल। आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। दुनिया ने अपने चेहरे पर नकाब चढ़ा रखे हैं, मगर बेवकूफ़ औरतें अपने साहिबान को जालिम समझती हैं। नदिया की चची नदिया की माँ से ऐसे किस्से बहुत गौर से सुनती और अमल भी करती थी। एक बच्चे को साथ लेकर औरत समझती है कि वो महफूज है। एक औरत को डीलर ने बहाने से किराए का मकान देखने के लिए बुलाया। वो बच्चे को लेकर मकान देखने अकेली चल पड़ी, तो इस डीलर ने प्लान के मुताबिक बच्चे को दूसरे कमरे में बंद करके 2 और आदमियों के साथ इसकी इज्जत लूट ली। आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। निधिया की चची डरते हुए तोबा तोबा करती हुई बोली, भाभी आप ठीक कहती हैं। औरत जितनी घर के अंदर महफूज है उतनी और कहीं नहीं होती। निधिया की माँ ने बताया कि मेरी माँ कहती है कि बाहर सहेलियां बनाने की बजाय अपनी नंदों, देवरानियों, जेठानियों को दोस्त बनाओ। इससे तुम्हें घर के अंदर भी फायदा होगा और दिल भी लगा रहेगा, और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करने से आसानियां भी पैदा होंगी और जिंदगी सुखी हो जाएगी। सबके बच्चों को अपने बच्चों जैसा समझो, क्योंकि बास बच्चे बड़े होकर याद रखते हैं कि कौन बचपन में उनके साथ कितना प्यार करता था। नंदों से दोस्ती करने से सास खुश होगी, तो सास खुश और नंद दोस्त, तो समझो इस घर में अमन और सुकून होगा। इसी बात को जहन में रखते हुए निधिया की माँ ने जाजिब की माँ को बहुत प्यार दिया। फिर जाजिब की माँ ने उसकी देखा देखी उसकी बातों पर अमल करना शुरू कर दिया और दोनों में बहुत दोस्ती हो गई। दोनों को बहुत मजा आता, इकट्ठी काम करती और साथ गपशप भी लगाती रहती, तो काम भी जल्दी हो जाता और वक्त भी अच्छा गुजर जाता। सास भी खुश और मुतमईन रहती। पहले नदिया की चची की बेटी माँ के पास कम जाती और नदिया की माँ के पास ज्यादा रहती। अक्सर वो उसे सोती हुई उठा कर ले जाती। निधिया की दोनों बड़ी बहनें अपनी कज़न जाजिब की बहन को बहुत प्यार करती और उठाए रखती, और चची के बहुत से कामों में मदद भी करती और उससे प्यार और एहतराम भी कायम रखती। वो भी जवाब में उनसे मोहब्बत और शफकत से पेश आती। जाजिब का बाप, उनका चचा, भी अपनी भतीजियों पर जान निछावर करता। उनको स्कूल और कॉलेज छोड़ने वही जाता। निधिया के वालिद भी अपनी भतीजी पर जान छिड़कते, उसे हर वक्त उठाए रखते और उसके लिए खाने पीने की चीज़ें लाते रहते। जब जाजिब होने वाला था तो निधिया की माँ उसके बेटा पैदा होने की इतनी दुआएं करती कि जितनी जाजिब की माँ और दादी भी न करती थी। कभी कभी जाजिब की माँ उसके खलूस पर हैरान होते हुए सोचती, क्या दुनिया में ऐसे फरिश्ता सिर्फ लोग भी होते हैं कि जो अपने से ज़्यादा दूसरों का भला सोचते रहते हैं? वरना अक्सर बहू कि जिनकी बेटियां हों और दूसरे के बेटा पैदा होने पर जेलिस होने लगती हैं कि बेटा पैदा करने की वजह से ससुराल में उसकी अहमियत ज़्यादा हो जाएगी और उसका बेटा जायदाद का भी वारिस होगा। मगर इधर तो उल्टा हिसाब था। उसकी जेठानी उसके बेटा पैदा होने के वजीफे पढ़ पढ़ कर पानी दम कर कर के उसे पिलाती और सबसे दुआएं कराती। जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में बेबी बॉय आया तो वो खुशी से ऊंचा ऊंचा रोकर सास को पुकारने लगी कि रिपोर्ट में बेबी बॉय आया है। उसने जाजिब की माँ को गले लगा लगा कर चूमा और उसके खलूस पर शिजदर रह गई। सास ने उसे कूल करते हुए समझाया कि बहू अक्सर रिपोर्ट्स गलत भी हो जाती हैं। बहुत से ऐसे वाक़यात सुन चुके हैं, इसलिए अभी इतना जज्बाती होने की कतई ज़रूरत नहीं। जब बच्चा हो जाए फिर किसी को बताना। अभी किसी को बताना भी नहीं, नज़र लगने का भी डर होता है। बस इस 4 दीवारी से बाहर ये बात नहीं जानी चाहिए। वो झट से बोली, माँ जी आप ठीक कह रही हैं, बस हमारी खुशियों को किसी की नज़र न लगे। मगर माँ जी मैं इसकी शॉपिंग लड़के वाली करूँगी और ढेर सारी करूँगी। आखिर मेरी बेटियों का छोटा भाई आ रहा है। वो खुशी से दमकते चेहरे से बोली, माँ जी मैं कल ही शॉपिंग करने जाऊँगी और अपने शहजादे के लिए ढेर सारी शॉपिंग करूँगी, और माँ जी उसका नाम भी मैं ही रखूँगी। माँ जी ने छोटी बहू की तरफ देखा तो वो झट से बोली, मेरे बेटे का नाम तो उसकी बड़ी मामा ही रखेंगी और वो मेरा नहीं इनका बेटा होगा। तो फिर क्या नाम सोचा है भाभी आपने अपने बेटे का? जाजिब, वो जोश से बोली, क्योंकि वो बहुत जाजिब नज़र होगा, बहुत प्यारा और गोल मटोल सा। अभी से तुम्हें मैं डबल खुराक खिलाना शुरू कर दूंगी ताकि कहीं तुम मेरे बेटे को भूखा ना मारती रहो। नहीं भूखा मारूंगी आपके बेटे को, बेफिक्र रहें। अब तो हर वक्त निधिया की माँ अपनी जिठानी की हर वक्त देखभाल में लगी रहती, उसके लिए ढेरों शॉपिंग करके लाती और सबको खुशी से बताती फिरती कि ये देखे मेरे बेटे की चीज़ें, इनको पहनकर मेरा जाजिब कितना प्यारा लगेगा। जाजिब की माँ पर रोज़ आयतें पढ़ पढ़ कर दम करती और फूंके मारती। उसे दम किया हुआ रोज़ पानी पिलाती और उसके सर से पैसे वार वार कर खैरात करती रहती। इसको फ्रूट्स काट काट कर ज़बरदस्ती खिलाती, इसकी दवाइयाँ उसको याद से वक्त पर देती। सब उसके जोश पर हैरान होते और हंस हंस कर कहती कि जाजिब के पैदा होने से मामा कहीं खुशी से पागल ही ना हो जाए। जिस दिन उसको लेबर पेन शुरू हुई
तो उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। तो वो उधर भी जाए नमाज बिछा कर हाजत के नफल भी पढ़ने लगी। हॉस्पिटल में निदिया के पापा और जाजिब के पापा भी मौजूद थे। उसको लेबर रूम में ले जाते ही नॉर्मल डिलीवरी हो गई और डॉक्टर ने झट बाहर आकर खुशखबरी सुना दी। दोनों निदिया के पापा और जाजिब के पापा ने फौरन घर फोन कर दिया। उनको निदिया की माँ कहीं नजर न आई और उन्होंने नर्स को बेबी बैग पकड़ा दिया। निदिया की मामा इंतहाई नमाज से इबादत में मशगूल थी कि उसे आसपास की कोई खबर न थी। जब सलाम फेर कर निदिया की माँ ने सामने देखा तो उसका शौहर और देवर नर्स की गोद में से बच्चे को लेकर प्यार कर रहे थे। उसने हैरत से देखा और भागती गिरती पड़ती जल्दी से खुशी से कपकपाती हुई आवाज में पूछने लगी कि ये कौन है। तो उसके शौहर ने कहा कि तुम इतनी इबादत में मगन थी कि तुम्हें किसी चीज की होश नहीं थी, इसलिए जब नर्स ने आकर खुशखबरी सुनाई और कपड़े मांगे तो इसे हमने बेबी बैग ही पकड़ा दिया। वो नर्स से जल्दी से बच्चा झपट चुकी थी। नर्स उसे चलाते हुए बोली, मैम इसे अभी नर्सरी में रखना पड़ेगा, इसका पूरा मुकम्मल चेकअप होगा, फिर आपको ये बच्चा मिलेगा। वो उसे चिमटाते हुए बोली, मैं अपने बच्चे के बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकती हूँ। बड़ी मुश्किलों से इसे समझाने बुझाने पर उसे बच्चा नर्सरी में रखा गया और वो नर्सरी के बाहर ही बैठी रही। शौहर ने समझाया कि जाकर अपनी देवरानी के पास भी बैठो। वो लापरवाही से बोली, मैं अभी उसे मुबारकबाद देने गई थी, उसके मैके वाले पहुंच गए हैं, वो सब इसके पास है, मेरा बेटा इधर अकेला है, मैं इधर से नहीं जाऊंगी। उसके देवर ने उसे जूस और स्नैक ला कर दिया तो वो बोली, मेरा बेटा पहले दूध पी ले, वो भूखा है तो मैं कैसे खा सकती हूँ। इसका इतना जज्बातीपन देखकर स्टाफ ने कहा कि शाम तक दोनों को घर भेज देते हैं। जच्चा और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक हैं। वैसे तो कल भेजना था, मगर ये धरना देकर इधर बैठ गई हैं, जिसकी वजह से हम कुछ नहीं कर सकते, ना ही कुछ कह सकते हैं, क्योंकि इनकी दिमागी हालत इस बच्चे के लिए पागलपन की हद तक है। शायद उन्हें बेटा पैदा होने की वजह से एहसास महरूमियत है। निदिया की पुप्पो घर बच्चों के पास पहुंच चुकी थी। निदिया की माँ की वजह से जासिब की माँ को शाम तक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। घर में भी सब इस बच्चे का शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। खास तौर पर दादी तो खुशी से निहाल थी। दादा भी सबको फख्र से बता रहे थे कि मेरी पोतियों का भाई आ गया है। जब उसे घर लाया गया तो दादी ने तड़प कर पोते को देखा। इससे पहले वो शुक्राने के नफल पढ़ चुकी थी। निदिया की माँ की मोहब्बत देखकर जाजिब के ननियाल वाले हैरान हो रहे थे। वो हॉस्पिटल में भी उसका जाजिब की माँ के प्यार का नज़ारा देख चुके थे। जब वो भागती हुई आकर रोती हुई जाजिब की माँ को गले लगाकर बहुत ज़्यादा प्यार करते हुए कह रही थी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने अल्लाह पाक के हुक्म से बहनों को भाई की खुशी दी। और देर तक उसे जज्बाती अंदाज में चूमती रही थी। घर आकर भी वो सबको हदायत देती फिर रही थी कि इसे ये नहीं करना, उसे वो नहीं करना, इसे ऐसे मत उठाओ और उसे वैसे मत उठाओ। 7 दिन बाद उसका अकीका और खतना वगैरह किया गया। हमेशा की तरह जाजिब के दादा ने जितनी खुशी पोतियों की दफ़ा मनाते थे और जितनी मिठाई इन सब रिश्तेदारों को भेजते थे उतनी ही भेजी। और पोतियों का जितना 7वें दिन अकीका करके सारे खानदान को गोश्त भेजते थे, इसी तरह उतना ही सब कुछ किया, न कम न ज्यादा। सब समझ रहे थे कि शायद वो इतने अरसे के बाद पोते की खुशी मिलने के बाद सारे खानदान की अकीके की दावत करेंगे, मगर उन्होंने ऐसा कुछ न किया। इतनी ही खैरात की जितनी पोतियों के पैदा होने पर करते थे, ताकि बड़ी बहू महसूस न करे। जाजिब अब ज्यादातर निदिया की माँ की गोद में ही रहता था। निदिया की चची जब से ब्याह कराई थी उसे सब बच्चे निदिया की बहनें छोटी मामा कहती थी और उसके बच्चे निदिया की माँ को बड़ी मामा कहते थे। ये उनकी दादी ने सिखाया था। जाजिब के 2 साल बाद निदिया पैदा हुई। उसकी पैदाइश से पहले जाजिब की माँ ने भी निदिया की माँ का बहुत ख्याल रखने की कोशिश की, मगर फिर भी वो इस तरह से ना रख सकी जिस तरह वो रखती थी। इस बार जबकि निदिया की सबसे बड़ी बहन 16 साल की थी और छोटी 14 साल की, तो निदिया पैदा हुई। इसकी पैदाइश से पहले हर बार की तरह उस बार भी निदिया की माँ यही दुआ करती, अल्लाह पाक मेरे जाजिब की भाइयों की जोड़ी बना दे, मुझे अब की बार बेटा दे दे। दादी ने सबको मना कर दिया कि कोई उससे ये ना कहे कि हाँ अल्लाह करे वगैरह वगैरह, बल्कि उससे कहे कि जो भी हो जाए खुशी ही होगी, चाहे बेटा हो या बेटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी जोड़ी अपनी बीवी के साथ बनेगी, वही जोड़ी होती है। जाजिब की माँ उसका दिल रखने को कह देती कि अल्लाह ताला आपकी मुरादें पूरी करे। जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में बेटी आई तो वो बहुत मायूस हुई और दुखी भी, क्योंकि उसकी पहले दोनों बेटियां बड़े ऑपरेशन से पैदा हुई थीं और अब भी बड़ा ऑपरेशन होने की वजह उसकी किसी मसले की वजह से बच्चेदानी भी निकाल दी गई। और इसके शौहर ने भी उसे हौसला दिया कि हमारी पहले ही 2 बच्चियां जवान थीं, मगर तुम्हारे बेटे की आस की वजह से तुमने इस उम्र में बच्चा पैदा किया तो ये बुढ़ापे की औलाद है।
جس کو والدین کا ساتھ کم عرصے کے لیے ہی ملتا ہے اور ایک طرح سے سب کچھ اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ یہی بیٹیاں ہی ہمارا غرور ہیں۔ سب کے سمجھانے پر اس کی اداسی میں قدرے کمی آئی۔ وہ بچی کو بھی اتنا دھیان نہیں دے رہی تھی۔ جاذب کی ماں اس بچی کو اپنی بیٹی کی طرح پالنے لگی۔ اسے احساس کے پیش نظر اس کی ماں نے جس قدر خلوص سے اس کے بیٹے کی خوشی منائی تھی، تو ندیا بالکل اسی طرح چچی کی گود میں زیادہ رہتی اور ماں کی گود میں کم۔ اب ندیا چونکہ اس گھر میں سب سے چھوٹی بچی تھی اور سب کی آنکھ کا تارا بن گئی۔ چچا بھی اپنے جاذب سے بھی زیادہ اس سے پیار کرتا۔ سب لوگ اس کی دن بدن خوشحالی کی وجہ ان کی بیٹیوں سے محبت اور اہمیت اور آپس میں سلوک و اتفاق کو دیتے کہ ان کی آپس میں شدید محبت کو دیکھتے ہوئے کوئی پہچان نہیں پاتا کہ یہ کس کس کے بچے ہیں اور ان کی مائیں کون سی ہیں، کیونکہ اگر ندیا کی ماں بچوں کو کچھ بنا کر دے رہی ہے تو وہ سب کو بنا کر دے گی، اپنے اور اپنے دیور کے بچوں کو بھی۔ اور اگر جاذب کی ماں کچھ اپنے بچے کو بنا کر دیتی ہے تو وہ جاذب کے علاوہ ندیا کے لیے بھی لازمی بناتی۔ ندیا کی بہن 18 سال کی تھی اور اس کی چھوٹی بہن 16 سال کی، تو ان کے ماموں نے ان کے رشتے اپنے بیٹوں کے لیے مانگ لیے۔ تو دادی نے رشتے کے ساتھ شادیاں بھی کرنے کا حکم صادر کر دیا کہ اپنی زندگی میں ہی ان کو اپنے گھر کا ہوتے دیکھنا چاہتی ہیں۔ دادی نے پڑھائی کی وجہ سے ان کی شادیاں لیٹ کرنے سے منع کر دیا کہ اگر پڑھنے پڑھانے کا شوق ہوا تو بعد میں بھی پورا ہو سکتا ہے، مگر اچھے رشتے کا روز روز ملنا ناممکن ہے۔ ان کے سامنے کی مثالیں ان کے خاندان میں موجود تھیں کہ بڑی بچی نے کہا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، پھر ڈاکٹر بننے کے بعد مزید اس نے ضد کر کے 5 سال کا مزید کورس کر لیا کہ بعد میں سسرال والے اسے کرنے نہیں دیں گے۔ اس کے چھوٹے بہن بھائی کی وقت پر شادی ہو گئی، مگر اس کی عمر دن بدن زیادہ ہوتی جا رہی تھی، تو لڑکے والے اس کی عمر کا ایشو بنا کر اسے ریجیکٹ کر دیتے۔ اس وجہ سے دادی نے سمجھایا کہ ان کی شادیوں میں دیر مت کرو، کیونکہ اس عمر میں لڑکیاں سسرال میں جلد ڈھل جاتی ہیں۔ اگر میکے والے شہر نہ دیں تو اور بچیوں کو بھی یہی احساس دیا جائے کہ اب یہی تمہارا اصل گھر ہے اور وہی اب تمہارے اپنے ہیں اور ہمیشہ ان کے ساتھ ہی رہنا۔ ندیا کی بہنوں کی شادیاں ہو گئیں اور جب ندیا 7 سال کی ہوئی اور جاذب 9 سال کا تو دادی نے ان دونوں کا رشتہ طے کر دیا۔ پھر دادی نے خواہش ظاہر کر دی کہ ان دونوں کا نکاح کر دیا جائے تاکہ وہ ان کی خوشی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ ان دونوں کا نکاح بھی چند قریبی رشتہ داروں کو بلا کر دیا گیا۔ کچھ خاندان والوں نے ان لوگوں کو سمجھانے کی بھی کوشش کی کہ اس دور میں کون ایسا کرتا ہے اور آج کل کے بچے تو جوان ہو کر اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور آپ لوگ یہ بے وقوفی کیوں کر رہے ہیں؟ بڑے ہو کر بچوں کا آپس میں مزاج نہ مل سکا یا انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ کیا بیٹی کی رخصتی سے پہلے ہی اس کی طلاق کروائیں گے؟ ویسے بھی بچپن میں رشتے طے نہیں کرنے چاہیے۔ اگر آپ کو زیادہ ہی ان کی خوشی دیکھنے کا شوق ہے تو ان کے رشتے طے کر کے منگنی کر دیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے رشتہ نہ جڑ سکے تو منگنی ٹوٹنے سے اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا نکاح ٹوٹنے سے پڑتا ہے، چاہے رخصتی نہ بھی ہوئی ہو، مگر منگنی ٹوٹنے اور نکاح ٹوٹنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ ایسا رسک کیوں لے رہے ہیں؟ مگر ندیا کے دادا دادی نہ مانے اور بولے، کیا ضروری ہے اور کیا گارنٹی ہے کہ جوان ہونے پر رشتہ کرنے سے ان میں کوئی رسک نہیں ہوتا؟ ندیا کے گھر والوں نے کسی کی بھی بات نہ مانی اور ندیا اور جاذب کا نکاح کر دیا۔ دونوں کو تیار کر کے اسٹیج پر بٹھایا گیا، مووی بنائی گئی، فوٹو کھینچے گئے۔ دونوں کے لیے ایک دلچسپ گیم کی طرح تھا کہ ان دونوں کو سب سے زیادہ اہمیت دی جا رہی تھی۔ سب ان دونوں کو سلامی کی صورت میں پیسے اور گفٹس دے رہے تھے اور ساتھ مبارکباد بھی دیتے تھے۔ ان دونوں کو دادی نے بتایا کہ تم دونوں کی شادی ہو رہی ہے، اب تم دونوں آپس میں میاں بیوی ہو، تو وہ دونوں بہت خوش ہو رہے تھے کہ ویسے بھی ان دونوں میں بہت دوستی تھی، کیونکہ وہی دونوں اس گھر میں چھوٹے بچے تھے۔ ندیا کی دونوں بڑی بہنیں تو بیاہی گئی تھیں۔ کچھ کہتے کہ چلو ایک لحاظ سے اچھا بھی ہوا کہ دونوں جوان ہو گئے تو ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے نامحرم بن جاتے ہیں، تو جوانی میں جوان بچوں کا اس طرح ایک ہی گھر میں ہر وقت اکٹھے رہنا مناسب نہیں ہوتا۔ جب وہ ایک مقدس رشتے میں بندھے ہوں گے تو زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ نکاح کے 1 ماہ بعد ہی دادی چل بسی۔ دادا رو کر کہتے، پہلے مجھے بلا لیتا میرا مالک۔ دادا بہت اداس رہتے، کہتے شاید اس نے اپنے لاڈلے پوتے پوتی کی خوشی نہیں دیکھنی تھی، شاید اسی لیے اس نے نکاح کی جلدی مچائی ہوئی تھی۔ ان کی بہویں بھی ان کے جنازے کے پاس بیٹھی ایسے رو رہی تھیں جیسے وہ ان کی سگی ماں ہو۔ خاص طور پر ندیا کی ماں ان کی سگی بیٹی سے بھی زیادہ رو رہی تھی کہ سب حیران ہو کر ندیا کی دادی کی تعریف کر رہے تھے کہ اس عورت نے سب کو اپنی دنائی سے جوڑ کر رکھا ہوا تھا، اس نے خود اچھی بن کر سب کو اپنے جیسا بنایا۔ اس کی بہو بیٹیاں پیدا کر رہی تھی اور ان کے گھر پیسے کی کمی نہ تھی۔ ان کے بیٹے یکمشت 4 بیویوں کو پال سکتے تھے
मगर उन्होंने बहू पर पोते की ख्वाहिश के पीछे सोकन लाने का सोचा तक नहीं और ना ही कभी बहू को ताना दिया। दूसरी औरत बोली, इनके शौहर के असूल भी बहुत अच्छे थे। अपने इकलौते पोते की भी इतनी ही खुशी मनाई जितनी पोतियों की मनाते थे। गर्ज सब इनकी दादी की तारीफ करते रहे और इन सब की तारीफों से इनकी नेकियों में इजाफा होता रहा और उनके दर्जात बुलंद होते रहे। निद्या और जाजिब बहुत छोटे थे, मगर फिर भी वो इस बात को समझते थे कि जो एक बार मिट जाता है वो दोबारा वापस नहीं आता। वो भी दादी के जनाजे के पास खड़े सबको रोता देखकर वो भी रो रहे थे। जाजिब तो बाप के साथ जनाजा पढ़ने भी गया था और काफ़ी हैरान और परेशान हो रहा था कि उसकी दादी को तो ज़मीन में बहुत नीचे दफन कर दिया गया था। अब वो इधर से कैसे निकलेंगी। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि मेरी दादी को कब्र में दफन न करो। बड़ी मुश्किल से इसे संभाला गया और घर लाया गया। माँ की गोद में लेटकर भी वो काफ़ी देर डरता और खौफजदा रहा। निद्या अलग अपनी बहनों के पास बैठी रही। वो इसे बहलाती रही क्योंकि वो अपनी माँ को भी संभाल रही थी जो बार बार नींद बेहोश हो जाती थी। काफ़ी दिनों तक सब इस गम में डूबे रहे कि 15 दिन बाद ही दादा भी चल बसे। सब इस दोहरे गम से परेशान और दुखी हो गए। वक्त बड़ा मरहम है, सब रूटीन में आ गए। निद्या और जाजिब जवान हो गए और वालिदैन ने उनकी शादी तय कर दी। बहुत धूमधाम से शादी की गई। शादी पर जाजिब की माँ ने बेटे के साथ जाकर हीरे की कीमती अंगूठी खरीदी और उससे कहा कि ये मेरी प्यारी बहू को मुंह दिखाई का तोहफा देना। दोनों का बचपन का प्यार भी था और दोनों बहुत खुश भी थे। जब सुहाग रात को जाजिब ने उसे हीरे की अंगूठी मुंह दिखाई दी और हक महर के तौर पर भी पहनाई तो वो खुश हो गई। अब जाजिब ने उसे ऐसी अनोखी बात कह दी कि सुनकर उसका दिल बंद होने लगा। जाजिब ने उससे कहा कि अब तुम भी मुझे हक महर दो वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। उसने उसकी दादी की निशानी रानी हार उससे मांगा कि वो उसे दे दे वरना वो उसे तलाक दे देगा। निद्या ने रोते हुए वो दादी की निशानी रानी हार अपने गले से उतार कर उसे देते हुए कहा कि ये लो और प्लीज़ मुझे तलाक मत देना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। वो हैरान होकर बोला, मगर मैं तो इसे बेचूंगा तो क्या तुम्हें दुख नहीं होगा कि बचपन में निकाह में दादी ने तुम्हें ये तोहफा भी दिया और कहा था कि इसे हमेशा संभाल कर रखना कि उनकी माँ की निशानी है। माँ ने उनको पहले बेटे की पैदाइश पर दिया था और तुमने उसे बचपन से अपने सीने से लगा कर रखा हुआ था। रोज़ इसे रात को चूम कर उतार कर सरहाने रख कर सोती थी। तुम तो दादी पर जान देती थी, फिर तुमने कितनी आसानी से ये उतार कर मुझे पकड़ा दिया। क्या तुम तलाक से डरती हो? इस डर और बदनामी की वजह से तुमने ये हार मुझे दे दिया, जबकि तुम जानती हो कि मैंने इसे बेचने के लिए मांगा है। क्या तुम्हें दुख नहीं होगा जब मैं इसे बेचूंगा? तो वो रोते हुए बोली, हर शरीफ औरत बदनामी से डरती है। हालांकि तलाक लेने का हक उसे शरई तौर पर मिला है, मगर महज लोगों की बातों की वजह से वो जुल्म सहती रहती है मगर तलाक नहीं लेती। दूसरी बात यह है कि तुमने ज़िंदगी में पहली बार मुझसे कोई चीज़ मांगी है। ये हार क्या चीज़ है? मुझे तुम्हारी ख्वाहिश और बात की अहमियत सारी दुनिया से ज़्यादा अजीज़ है। मैं हार का दुख तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर तुमसे जुदाई का तसव्वुर भी मेरे लिए रूहानी सू है। प्लीज़ मुझे अपने नाम से जुदा मत करना वरना मैं मर जाऊँगी। तुम चाहे इस हार को फेंको, बेचो, जो मर्जी करो। वो रोते हुए बोला, मैं तो तुम्हें वैसे ही आजमा रहा था कि तुम जो हर वक्त दादी की दीवानी बनी रहती हो तो तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितनी अहमियत और मोहब्बत है। क्या तुम मुझे दादी पर अहमियत देती हो या नहीं? मैं तो तुम्हें तलाक देने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे माफ़ कर दो कि मेरी नादानी की वजह से तुम्हें शदीद दुख पहुंचा। मैं वादा करता हूँ कि दोबारा कभी तुम्हें दुख नहीं दूंगा। मैं देखना चाहता था कि मेरे ऊपर तुम क्या दादी को अहमियत दोगी या नहीं। ये लो, ये हार तुम्हें ही मुबारक हो। निधिया उसे एक मुक्का मारते हुए बोली, तुम बहुत ख़राब इंसान हो। वो हंसकर बोला, ये तो जानता था कि बीवियों के हाथों शोहरों की पिटाई होती है, मगर यहाँ तो पहले दिन से ही मेरी पिटाई शुरू हो गई है। वो सॉरी बोलकर शर्मा गई और उससे दादी के हार को एक तरफ रखते हुए बोली, कल से ये लॉकर में चला जाएगा। अब मुझे इस हार पर फिदा होने की ज़रूरत नहीं। मुझे नहीं पता था कि मेरा शौहर इससे जेलिस होता है। वो शर्मिंदा सा होकर कान पकड़कर मुस्कुराने लगा और उसने इसके दोनों हाथ कानों से खींचकर हटा दिए। उसने शुक्रिया कहा और दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। इनके वालिदैन उनको वलीमे वाले दिन बहुत खुश देखकर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने लगे कि उनके बचपन के निकाह की वजह से जो वसवसे उनके दिल में अरसे से थे वो ख़त्म हो गए और उनकी दादी के जोड़े हुए रिश्ते की लाज रह गई। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।